हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सेफ हो, प्रॉपर मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हो। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक फर्मी डिराक एनर्जी और फर्मी एनर्जी करने वाली हूँ। एज यू नो दैट हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस टॉपिक इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी लेवल इन द मेटल्स. वी आर डिस्कसिंग द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. As you know that ki with the particular temperature, when the temperature is about 0 Kelvin, all the metals they are Fermi levels. ठीक है, we are denoted with Fermi level with a dot. ठीक है, that is called Fermi level. You know that in the metal the electron, proton, neutron they are follow the Fermi Dirac in which they obey the Pauli exclusion law. In the metal the Fermi Dirac energy distribution follow. So here we are discussing about that the energy level of the Fermi Dirac. So the electrons are present in these levels, and there is a present of the Fermi level, that is called, which are denoted by the dot, and the Fermi energy is denoted by the UF. The below the energy Fermi level, all the energy levels are filled. Okay, means the electrons are present in this level, only one electron, because they are follow the Pauli exclusion law. And the above the Fermi level, all the energy levels are vacant. So energy level of first level that we call, which is starting from U, and the higher level is the U plus du, and the below the energy of the Fermi levels, yani which must be equal with the Fermi energy and the less than Fermi level. Okay, so how we write that? At the temperature of 0 Kelvin, as you all know that there is a Fermi level in a matter. Okay, Fermi level that is present in the metals. So below the Fermi level, all the energy levels are filled. Okay, as you can see that is the filled, and above all energy levels are vacant. As you see that all the energy which are above the Fermi level are unoccupied, or we can say vacant. That is called Fermi level, and that standard is called, and the, or we can say that level we call Fermi level. And the Fermi energy is denoted by UF. Okay, हमें फर्मी एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए हमें फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल, जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में किया था, आई कैन शो यू वेयर वी यूजिंग दिस 8th equation, that is gu du, but here we use as the particle. So here in terms of gu we replace with the nu du, because we find out the energy, Fermi energy of the particles, so we use nu du. Okay, that is the Fermi electrons, that is here the total number of electrons in the metal. So for the number of electron we have to integration with the limit of 0 to uf is the highest limit of the Fermi level, that's we do, and the lowest is 0. तो हम NuDu को से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जस्ट इंटीग्रेशन. सो एज यू नो दैट कि एट टेम्परेचर 0 केल्विन द फर्मी एनर्जी या तो इक्वल होएगी, जो लोअर लेवल है उसके इक्वल होएगी, या लेस देन होएगी, उससे अबव नहीं होएगी, क्योंकि अबव क्या है, वेकेंट है. हमें क्या निकालनी है, फील्ड की जो फर्मी लेवल एनर्जी है, फर्मी एनर्जी से सारे इक्वल होंगे या लेस देन होंगे. अगर u को u माइनस एफ करेंगे तो इट मीन्स जो हमारे आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव आएगा. तो टेम्परेचर हमारा क्या है, 0 है. जो ये वाली टर्म है हमारे, अगर हम t की जगह 0 पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सारा 0, और हमारे ये 1/0 हो जाएगा, यानी यहाँ 0 पुट करेंगे. एज यू नो डेट जो डिनोमिनेटर में जब 0 होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी
हमारा ये आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में, तो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो हम द इक्वेशन 2 जो हमारी ये निकली थी इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमने जस्ट इसको क्या कर रहा है, उसको एज इट इज़ लिख दिया, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लिख दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ओनली यू की वैल्यू चाहिए, हमने यू को अंदर रख लिया। जस्ट क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को हमने इधर लेके आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ कॉन्स्टेंट वाली टर्म को यू एज इट इज़ करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर क्या होएगी, एक ऐड हो जाएगी, और जो पावर ऐड होके आएगी वो किस में लिखेंगे, 3/2 में। लिमिट क्या रहने वाली है, 0 to UF। अब हमें क्या करना है, यू की लिमिट पुट करनी है हमें। ओके, तो हमने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, UF की पावर 3/2 माइनस में 0। ओके, ये वाला जो 3/2 है ये सारा यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, ओनली U/3/2। 3/2 जस्ट क्या हो जाएगा, आगे लग जाएगा, तो 3/2 रहने वाला है, यहाँ क्या रह जाएगा, UF की पावर 3/2 एंड 0 to UF लिमिट, UF 3/2 माइनस में 0। ओके, माइनस में 0 हो गया। अब UF की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 3/2 है ये इस पूरे की क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा पावर, यानी 2/3 हो जाएगी। वही किया है, UF को हमने यहाँ लिया है और इसकी पावर क्या होगी, इधर आके रिवर्स हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, 2/3। ओके, 2/3। अब देखो यहाँ से हमारे पास h³ है और इसकी पावर क्या है, 2/3, तो h³ 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या रह जाएगा, स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, √2, 1 पावर और हाफ पावर, 2 की पावर हाफ है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 3/2, 2 की पावर 3/2 और ओवरऑल पावर क्या है हमारा, 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर क्या बचेगी, 1, तो 2 की पावर 1। ओके, सिमिलरली m की पावर 3/2 है यहाँ, और इसकी पावर क्या है, 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, अकेला m की पावर 1, यानी हमारे पास ओनली m। जो जो हमने पावर निकाली है, जो जो वैल्यू निकाली है, वो अगेन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। UF 3 अंदर आ जाएगा, जस्ट लुक एट द पिक्चर, h³ की जगह क्या रह जाएगा, h², m क्या है हमारा 1, तो 2m। हमने 2 की वैल्यू निकाली ना, ये भी 1 पावर है, ये हमारे जहाँ जब है इसको अलग, अब जहाँ 2/3 पावर है उसको हम सेपरेट करेंगे। 3 की पावर क्या है, 2/3, 3 की पावर 2/3, 8 और पाई की वैल्यू क्या है, 2/3, 2/3, यानी इसका पूरे का हमने क्या कर दिया, 2/3। यहाँ n है रह गया, और क्या रह गया, v रह गया, इसकी पावर क्या है हमारे पास, 2/3। ये हमारी क्या है, 4th इक्वेशन है गाइस, और ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। हमें UF की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन में हमने क्या करनी है, पुट करनी है। तो हमारी जो इक्वेशन 3 आई है, एक बार हम इसको वापस से अगेन इसको सेटिस्फाई करेंगे, 2/3 है, यहाँ से इधर आके क्या हो जाएगी, 3/2, UF की पावर 3/2। ओके, बाकी टर्म हमारी क्या रहेगी, सिंगल पावर। अब देखो ये जो h³ है वो नीचे आ जाएगा। ओके, UF हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये वाला UF भी नीचे आ जाएगा, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। देखो ये वाली टर्म ऊपर आई, 8√2 पाई VM 3/2, ये सेम यहाँ है, ये h³ बोला था यहाँ नीचे आ जाएगा। अब रह क्या गया, 3/2 एज इट इज़, और क्या रह गया हमारे पास, n रह गया, और UF हमारे कहाँ गया था, नीचे। ये हमारी क्या होगी, 5th इक्वेशन। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2n इंटू में UF माइनस में 3/2 भी लिख सकते हैं। ओके, इसको -3/2, ये वाली जो पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में 3/2। ये मान लो हमारे पास 5th इक्वेशन ये आई है, अगर हमने पावर उसको, ये किसकी वैल्यू है सारी हमारे पास, इसकी वैल्यू है, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो इसकी वैल्यू है। अगर हम ये वाली वैल्यू
8√2πVm3/2 और पाई में h³ की जगह हमने ये वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो हमारे पास हमने पुट करी, मोवली जस्ट सबको रिप्लेस करके हमारे पास क्या रह गया 3/2n u⁴f सो uf माइनस 3/2, बाकी टर्म हमारे पास क्या है एज इट इज़ है। तो ये हमारे पास क्या निकली है, फर्मी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ uf, which is the Fermi-Dirac energy distribution law for electron gas in metal in terms of Fermi energy। अब ये क्या आ गई हमारे पास Fermi energy। That's all about today. Thank you so much.